So hello everyone, this is Aman. Welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss my complete strategy for engineering services which I have followed and cleared engineering services 2 times. So if you like this strategy, you can also follow this. So in this video I will not only discuss my strategy but also I will discuss how to execute this strategy in a very easiest possible way. इस वीडियो में मैं अपनी complete detail strategy discuss करने वाला हूँ. Detailed से मेरा मतलब ये है कि during my preparation what resources I have referred and what is my day-to-day study plan and how I revise and how I have given the test series, everything will be discussed in this video. So तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखो ताकि तुम इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ पाओ. So in order to explain my strategy better, I have divided this video into 3 parts. In the first part, we will discuss about the resources which I have referred in order to clear engineering services. In the second part, we will discuss about the study plan, the routine, the preference of subject and the day-to-day activities which I have done during my preparation. And in the third part, we will discuss about the revision and the test series. Means how many times I have done the revision, what is the way of doing revision, and how many times I have given test series. These things we will discuss in the part 3. So without any further delay, let's directly move to the part 1, that is the resources which I have referred during the preparation. So in order to have a better preparation, you have to keep your resources as minimal as possible, and according to me resources are of 2 categories. पहले वो resources होते हैं that you require immediately to start your preparation. And in this category, I will recommend only 2 resources. The first resource which I will recommend is the class notes. Because class notes is the complete detailed version of what your competition syllabus is. जो तुम्हारे engineering services या GATE का syllabus होगा, उस particular उसमें जितने theoretical concept होंगे या जितने type के numerical पूछे गए होंगे, सारी चीज़ों का एक consolidated form होता है तुम्हारा class notes. अब क्लास नोट्स तुम किसी भी कोचिंग के ले सकते हो जहाँ तुम पढ़ रहे हो, या अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम खुद से ही एक क्लास नोट्स बनाया होगा, तुम उसको भी रेफर कर सकते हो. अब क्लास नोट्स के बाद जो सेकंड रिसोर्स होता है वो होता है प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी. एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी को अपने प्रिपरेशन के मिड में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बट आई विल रिकमेंड टू गेट द प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू कैन सॉल्व थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी. ये नहीं है कि आपका एक बार प्रिपरेशन हो जाता है उसके आखिरी में आप गेट एंड ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करो. आपको गेट एंड ईएससी के प्रीवियस ईयर शुरू से ही लगाने हैं. थर्ड रिसोर्स विच आई जनरली डोंट रिकमेंड, जो वर्कबुक होती है, आपके जो भी कोई कोचिंग या कहीं के भी जो वर्कबुक होते हैं आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, बट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्लास नोट्स एंड प्रीवियस ईयर आर मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक इंजीनियरिंग सर्विसेज. मैंने खुद क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर के अलावा और कोई भी रिसोर्सेस रेफर नहीं किए, एंड अकॉर्डिंग टू मी दीज 2 आर मोर देन सफिशिएंट. अब कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो मैं रिकमेंड तो नहीं करता, जैसे कि रेफरेंस बुक. अब देखो रेफरेंस बुक का क्या सीन रहता है ना कि उसमें जो भी सिलेबस उसका रहता है वो जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है या गेट का सिलेबस है उससे कहीं ज़्यादा बुक का सिलेबस रहता है, एंड उससे कहीं ज़्यादा डेप्थ में भी उसमें रहता है. तो I will never recommend to get a reference book, but you can refer reference book for particular topic in which you are feeling some confusion or lack of confidence. जैसे कि तुम FM पढ़ रहे हो एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम्हारा बाउंड्री लेयर है, तुमने क्लास नोट से पढ़ा, फिर भी तुम्हें एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि थोड़ा सा और डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए तुम FM की रेफरेंस बुक लाइक मोदी एंड सेठ की आती है, तुम उसको रेफर कर सकते हो. बट फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन यू शुड नॉट रेफर टू द रेफरेंस बुक्स. अब कुछ रिसोर्सेस होती है जो तुम्हें मिड ऑफ प्रिपरेशन में चाहिए होगी, जैसे कि नंबर 1 तुम्हारे शॉर्ट नोट्स. अब देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टॉपर्स के शॉर्ट नोट उठा लिए या हैंडबुक वगैरह ले ली, तो क्या होता है ना यार, देखो शॉर्ट नोट्स तुम्हें चाहिए होती है एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू रिवाइज योर सब्जेक्ट. अब रिवीजन तुम अच्छे से तब कर पाओगे जब शॉर्ट नोट्स तुमने खुद बनाया है. आई विल रिकमेंड टू प्रिपेयर योर ओन शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. एंड फाइनली द टेस्ट सीरीज विच is the most crucial thing in entire preparation, because तुम फाइनली तैयारी कर रहे हो एक एग्ज़ाम की. तुम ना ही PhD कर रहे हो ना ही तुम रिसर्च कर रहे हो,
तुम्हें पार्टिकुलर उस एग्जाम में जाके जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, एंड उसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज से। सो टेस्ट सीरीज भी तुम्हें लेने हैं इन द मिड ऑफ प्रिपरेशन, मैं बताऊंगा तुम्हें कब लेना है। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द स्टडी प्लान। सो स्टडी प्लान बनाने से पहले सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब देखो, प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हो। पहला, तुम्हारा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो तुम्हारे इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक तुम बना सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हायर वेटेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तुम वो सब्जेक्ट पहले कर सकते हो। तो जो ये ऑर्डर डिसाइड होता है कि कौन सब्जेक्ट कब करना है, ये ऑर्डर तुम या अदर इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हो या वेटेज के बेसिस पे कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड टू गो थ्रू बोथ। अब देखो, इंटरेस्ट एंड वेटेज के अकॉर्डिंग दोनों ही तुम कैसे कर सकते हो, आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक एनालिसिस की है 3 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की है। कौन से सब्जेक्ट में 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, फिर 2021 में हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, एंड 2020 में हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। एंड इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि फ्लूइड मशीनरी हो गया, प्रोडक्शन वगैरह हो गई, इन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने कैटेगरी ए में डाला है। फिर कुछ सब्जेक्ट हो गए जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मशीन डिजाइन, और भी कुछ 2 सब्जेक्ट हैं, इनको मैंने कैटेगरी बी में डाला है। ये वो सब्जेक्ट है जो मॉडरेट हैं। एंड थर्ड कैटेगरी लाइक थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, इनको मैंने थर्ड कैटेगरी में डाला है क्योंकि इनसे आजकल लीस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले एक ज़माना था जब पूरा का पूरा पेपर थर्मोडायनामिक्स या आईसी इंजन पे बेस्ड होता था, लेकिन अभी का ट्रेंड यही चल रहा है। सो अब देखो, जो मैंने कैटेगरी ए, बी, सी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, तो तुम सब्जेक्ट ऑर्डर डिसाइड करने के लिए तुम एक काम कर सकते हो कि जो कैटेगरी ए के सब्जेक्ट हैं उनमें से जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट होंगे तुम उनसे शुरू कर सकते हो एंड उसको उसी सीक्वेंस में डाल लो। फिर कैटेगरी बी के जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट होंगे उनको पहले करो, एंड लास्ट में जो तुम्हारे लीस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट हैं उनको करो। सो बाय डूइंग दिस यू आर फॉलोइंग ए सब्जेक्ट ऑर्डर दैट इज इन द वेटेज ऑर्डर एंड ऑल्सो एज पर योर इंटरेस्ट। एंड देखो, वाई आई एम रिकमेंडिंग टू डू एज पर योर इंटरेस्ट, बिकॉज if you do as per your interest, you will be motivated throughout the entire journey of your preparation, and that is very much required. अब चलो, तुमने प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट तो डिसाइड कर लिए, बट अब ये डिसाइड करना है कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो कितना टाइम देना है वो डिसाइड करने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि हर सब्जेक्ट में तुम्हें क्या करना है, सो दैट यू कैन स्कोर हायर इन दैट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो यू कैन हैव बेटर प्रिपरेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, What you have to do that I am going to tell you। सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है कि जो क्लास नोट होते हैं, पहले तो वो क्लास नोट आप ओपन करो, एंड क्लास नोट्स के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं आप उनको पहले स्टडी करो, उनको समझो, उनको फील करो कि ये वर्क कैसे कर रहा है। बस ऐसे नहीं कि आप पढ़ लिए, डिफिनीशन रट लिए, रटना बिल्कुल नहीं है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है। तुम बस सिंपली हर एक कॉन्सेप्ट को, उसके वर्किंग को समझो एंड थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसे ही कवर करो, कभी भी मगअप नहीं करना है। एंड सेकेंड पोर्शन, न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो इसके लिए तुम बस जो क्लास नोट में थ्योरेटिकल पोर्शन अभी तुमने जो जस्ट कंप्लीट किया है, उसके जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, तुम इमीडिएटली एक ब्लैंक नोटबुक उठाओ एंड जो आपके क्लास टीचर ने क्लास में कराया है, सेम जो आपके जो क्लास नोट्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद अपने से करोगे विथ यूजिंग कैलकुलेटर वगैरह जो भी अलाउड है उसके अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो अलाउड नहीं है तो वहाँ मत यूज करना, गेट में अलाउड है तो उसके लिए आप यूज कर लेना। तो चलो, तुम्हारा क्लास नोट्स हो गया। अब क्लास नोट्स के बाद दूसरा रिसोर्स जो मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी। तो क्लास नोट्स एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी उठाओ एंड एक टाइमर लेके बैठो। कभी भी तुम प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी बिना टाइमर के नहीं करोगे, हमेशा तुम्हारे पास एक टाइमर होना चाहिए। एंड टाइमर में तुम शुरुआत में, अगर तुम पहली बार करने जा रहे हो, आपको एग्जाम में जो भी टाइम मिलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, एंड टाइमर को ऑन करके ही आपको प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी की प्रैक्टिस करनी है। एंड कैलकुलेटर यूज कर सकते हो गेट के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नहीं यूज करना है। तो चलो, आपके क्लास नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी हो गया, दैट इज इनफ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच हो सकते हो। ऐसे ही करते करते जो आपका
स्टडी प्लान है वो चलेगा। चलो अब आप तो प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट समझ गए, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है वो समझ गए प्रिपरेशन के दौरान। एंड फाइनली यू हैव टू प्रिपेयर ए शेड्यूल। अब शेड्यूल में क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट को तुम टाइम अलॉट करोगे। जैसे कि बड़े सब्जेक्ट हैं तो उसको 10 से 15 दिन अलॉट कर सकते हो, एंड छोटे सब्जेक्ट हैं तो उसको 1 वीक के अराउंड टाइम अलॉट कर दो। एंड एक तुम शेड्यूल बना लो कि तुम्हारा पूरा रूटीन, एंड कोशिश करो कि 6 मंथ या 7-8 मंथ तक तुम्हारा पूरा जो इंटायर सिलेबस है गेट एंड ईएसई का वो खत्म होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीएस ऑल्सो। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेटिंग ए टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू स्टडी विदाउट सेटिंग ए टारगेट यू विल गोइंग टू फेल। सो 100% तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए एक टारगेट टाइम अलॉट करना है एंड ट्राई टू फिनिश दैट सब्जेक्ट इन दैट अलॉटेड टाइम। देखो होगा ऐसा कि तुम्हारा रूटीन थोड़ा मोड़ा लैग करेगा, कभी कभी हो सके तो ज़्यादा भी लैग करेगा, बट उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट तुम अगर थोड़ा सा जब भी रूटीन लैग करे थोड़ा सा उस रूटीन को ट्विक कर देना, 1-2 दिन बढ़ा देना एंड ट्राई टू कवर इन दैट डेज। चलो जो तुम्हारा मेन स्टडी प्लान है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, एंड लास्ट पार्ट में आई विल डिस्कस माई रिविजन रूटीन, हाउ आई यूज टू रिवाइज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज। अब देखो रिवीजन में बेसिकली मैं करता ये था कि व्हाट एवर आई स्टडी आई रिवाइज ऑन द सेम डे। अब सेम डे कैसे रिवीजन करोगे? देखो दिन भर तुमने जितना भी पढ़ लिया, ठीक है, तुमने क्लास नोट्स पढ़े, उसके क्वेश्चंस किए, कुछ प्रीवियस ईयर किए। जब रात को तुम बेड पे सोने जा रहे हो तो उस समय तुम मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय तुम चाहो तो जितना भी तुमने पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट को, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, सारे न्यूमेरिकल्स के अप्रोच को अपने माइंड में रिकॉल करो। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, इसको यूज करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलो बात करते हैं रिवीजन की, कि रिवीजन करने का क्या तरीका होता है एंड कब हमें रिवीजन करनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट रिवीजन आपको करना है जब आपके 3 से 5 सब्जेक्ट कवर हो जाए। आपको एंटायर सब्जेक्ट खत्म करने का वेट नहीं करना है। आपके जैसे ही 3 से 5 सब्जेक्ट खत्म हो जाए यू हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन रूटीन पैरेलली। आपका मेन जो प्रिपरेशन वाला शेड्यूल है वो चलता रहेगा, पैरेलली में आपका रिवीजन रूटीन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं आपको रिवीजन करना कैसे है। तो रिवीजन के लिए तुम सीधा एक नोटबुक उठाओ एंड अपने क्लास नोट्स को पहले तो साइड रख दो। डोंट ओपन क्लास नोट्स ड्यूरिंग योर रिवीजन। तुम एक ब्लैंक नोटबुक लो एंड उस ब्लैंक नोटबुक में सीधा सब्जेक्ट का नाम दो, टॉपिक का नाम दो एंड स्टार्ट टीचिंग योरसेल्फ कि उस टॉपिक में तुमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल अप्रोचेस पढ़े हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल को बनाया जाता है, कौन कौन से फार्मूला होते हैं। तुम उस ब्लैंक नोटबुक में सब कुछ लिखोगे एंड क्लास नोट्स को तुम तभी ओपन करोगे जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें याद नहीं आ रहा है। तुम कोशिश करो, एटलीस्ट यू ट्राई 1 or 2 टाइम्स टू रिमाइंड द थिंग्स। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम उस केस में क्लास नोट्स ओपन करके उस पार्टिकुलर टॉपिक देख लो एंड देन अगेन क्लोज द क्लास नोट्स एंड फिर से खुद से रिमाइंड कर करके वहां लिखना शुरू कर दो। सो इन दिस वे यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें क्लास नोट नहीं मिलेगा, एग्जाम में तुम्हें खुद के ब्रेन से ही रिमाइंड करके वहां पे आंसर्स लिखने हैं। तो बेटर होगा उसकी प्रैक्टिस तुम अभी से शुरू कर दो। तो चलो ऐसे करके तुमने अपने जो भी पढ़ाई की है उसकी रिवीजन कर ली। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तुम क्लास नोट्स ओपन करो अब, एंड क्लास नोट्स ओपन करके उसके जितने भी न्यूमेरिकल कराए गए हैं उसको तुम माइंड में सॉल्व करो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, एंड उसका लास्ट अप्रोच तक आ जाओ। कंप्लीट आंसर तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट पेन एंड पेपर एंड कैलकुलेटर तुम कंप्लीट आंसर तक आ नहीं सकते हो। अगर तुम माइंड में सोच पा रहे हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, दैट इज इनफ, तुम्हें इतना ही करना है। तो ऐसे ही तुम सारे क्लास नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड ऐसे ही सारे तुम प्रीवियस ईयर के गेट एंड ईएसई प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम सबको फिर से बनाओगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तुम पेन तभी उठाओगे जब स्टेप्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं एंड तुम उतना सोच नहीं पा रहे हो, तब तुम पेन एंड पेपर उठाओगे एंड लास्ट तक पहुंचोगे। एग्जैक्ट आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट का स्टेप तक पहुंच जाओ, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो रिवीजन में तुमने क्लास नोट्स कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएसई कवर कर लिया एंड अब तुम्हें करना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू। जैसे जैसे तुम एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते जा रहे हो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू कर दो। सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जो होता है टेस्ट वो अभी से शुरू कर दो। फुल लेंथ अभी एक भी नहीं छूना है, अभी जितने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो कवर करने हैं एंड अपना परफॉर्मेंस देखो, अगर अच्छा आएगा तो तुम्हें भी मोटिवेशन होगा इससे।
ऐसे करके तुम अपनी जो भी प्रिपरेशन जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हो एंड जो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों तुम्हारा 6 to 8 मंथ्स में हो जाएगा। और अगर तुम सेकेंड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये दोनों तुम्हारे 3 से 4 महीने मैक्सिमम है, उतने में कवर हो जाएगा। अब बारी आती है सेकेंड टाइम रिवीजन की। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम रिवीजन बताया है उसमें से तुम बस 2 पार्ट कट कर दो। क्या कट करना है? तो जो तुम प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड ईएससी कर रहे थे उसको कट कर दो। इस बार बस क्लास नोट्स को रिकॉल करो, फॉर्मूलाज लिखो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखो एंड उसके साथ साथ जो क्लास नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल कराए गए हैं उसको एक बारी सॉल्व कर लो अपने माइंड में। दैट इज इनफ इन द सेकेंड टाइम रिवीजन। एंड इसके अलावा अभी से ही तुम्हें फुल लेंथ शुरू कर देने हैं। फुल लेंथ जितने भी हैं तुम्हारे अल्टरनेट डेज पे करो। आज एक फुल लेंथ करो, जो तुम्हारा सेकेंड रिवीजन रूटीन है उसको एज इट इज चलने दो एंड फुल लेंथ देना शुरू कर दो। सो दिस इज द मेथड ऑफ सेकेंड रिवीजन। एंड ऐसे करके तुम फिर थर्ड रिवीजन करो, फोर्थ रिवीजन करो एंड पैरेलली तुम फुल लेंथ भी देते रहो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जब तुम दोगे तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो तुम्हारा वीक होगा। सो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तुम थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, उसके गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर भी लगा लो एंड अगर जरूरत पड़े तो उसके वर्कबुक भी लगा लो। एंड आई थिंक दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट। अब चलो, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो फाइनली दिस जर्नी इज़ नॉट ईजी, इट इज़ टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, बट यू कैन मेक दिस जर्नी इंजॉयबल। तुम पूरी जर्नी को इंजॉय कर सकते हो अगर तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है तो। एंड मज़ा कैसे आएगा? जब तुम्हें उस पार्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको पहले कर लो। बिकॉज अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारा एक इंटरेस्ट बना रहेगा और अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। एंड जब तुमसे क्वेश्चन बनेंगे, तुम अच्छा स्कोर करोगे तो ऑब्वियसली है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। एंड कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो तुम्हें थ्रू आउट द जर्नी तुम्हारा मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई रहेगा एंड तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी। एंड सुनो, एक बार क्या होता है ना, देखो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें मैटर करती है। एक होता है फोकस, दूसरा होता है फ्लो। तो तुम्हें अपने फोकस को इम्प्रूव करना है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि तुम सो के उठो तो भी उसी चीज़ के बारे में सोचो, सोने जाओ तो भी उसी चीज़ के बारे में सोचो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई के अलावा उन सब को अभी कट डाउन कर दो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सोसाइटी से कट हो जाओ, तुम कोई टीवी सीरीज़ ना देखो, तुम मूवीज़ ना देखो। देखो मैंने खुद प्रिपरेशन की है ना, तो मैंने टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ जो भी आती थी मैंने खुद सब कुछ देख के किया है। बिकॉज जो तुम्हारा टारगेट है ना दिन का, अगर तुम टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो यू आर फ्री। जो भी तुम्हारा शेड्यूल है और जो भी तुम्हारे डेली के टारगेट्स हैं, अगर तुम कंप्लीट कर देते हो तो जस्ट रिवार्ड योर सेल्फ विथ सम ट्रीट। अब ट्रीट तुम्हारे केस में एक वेब सीरीज़ हो सकती है, एक मूवी हो सकती है, या एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है। जस्ट रिवार्ड योर सेल्फ। सो बी मोटिवेटेड, कीप गोइंग एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।